नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू, योर चैनल। We look at all aspects of the story and we don't edit anybody. We try and get everybody to speak as much as they want to. यहाँ पर कोई किसी पे चिल्लाता नहीं है। कभी कभी मैं जान के चिल्ला लेता हूँ अगर कोई बंद नहीं हो रहा तो, but that's a separate issue. You know that quite well. But ये एक चैनल है जहाँ पे हर एक की बात हम सामने रखते हैं साहब। यहाँ पे सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, सीधी बात। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And we're getting a lot of response from China, by the way. I Yes. didn't know that we were being bought so much in Yes, China. yes, yes. And the response we're getting is, everybody is very happy that Mr. Modi, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is actually going for the Shanghai conference. Which is fantastic, by the way, which is really, truly lovely. And the other thing, and this is an exclusive, by the way, only on Nation Now. Let me tell you this. व्लादिमीर पुतिन और आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत हुई, उसमें आपको ये बताना बहुत जरूरी है। We need to tell you this. We need to tell you this. There is every possibility that Mr. Modi actually might convince Vladimir Putin and Zelensky for a ceasefire. Might really happen. Pradeep ji. And things are happening really. China, Brazil, Russia, this Prakar se Prime Minister Modi, in fact, Brazil Prime Chief and Modi did talk. China indirectly said that India's sovereignty cannot be challenged in this particular way by the way of tariffs. You cannot demand things for a sovereign nation. You can't challenge their sovereignty. And Russia has always been a friend of India. They said these things are not right, what's happening. Trump cannot demand things. It has to be bilateral, it has to be mutual, it has to be acceptable. You can't thrust yourself the way you are doing. That's and so, right. all the big giants. Now, you were saying the BRICS. Yes, the BRICS together. China, part of BRICS. Russia together. And Brazil. Don't forget Brazil. Yes. President Lula. Yes, that's why he did talk. He did talk to Prime Minister Modi. Things are changing. A new world. And as the government said, no compromise on the interest of farmers, the fishermen, and the Pashupalaks. Very, very clear. Prime Minister Modi said, we are not going to compromise on these three people. What happened? Even if my own reputation is at stake, even my interest is at stake, the nation is more greater for me. Prime Minister Modi being very clear, and once Prime Minister is clear, the entire government is clear कि हम लोग को क्या करना है. Search for new markets, search for new markets, search for new markets for your products. We will make the way for you. Right, let's go straight across to our guests. We have three wonderful guests with us. Wonderful and most respected guests. Let's go straight across to them. There it is. Mukesh Gandhi sahab, Pooja Mishra ji, and Ganesh Khankar sahab. Pooja Mishra ji, namaskar. नमस्ते। गणेश खानकर साहब नमस्कार। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार। तो गणेश खानकर साहब इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? बड़े गंभीर अवस्था में, क्या बात है? बहुत गंभीर अवस्था में सर, क्या हो गया? मतलब क्या है? मतलब आज क्या है? किसी लड़के आए हैं या मेरी शक्ल पसंद नहीं आई? क्या हो गया? मतलब प्रदीप जी को तो आप बहुत हैंडसम बोलते हैं, मेरी शक्ल मुझे लग रहा है पसंद नहीं आ रही आपको। नहीं राजीव जी, ऐसा नहीं है। आपकी शक्ल को क्या हुआ भाई? मैं आने वाले कल के भविष्य की ओर देख रहा हूँ आपकी शक्ल को देखकर। क्या बात है सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दाढ़ी रखी हुई है श्रावण में, ये काटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मोदी जी की दाढ़ी बन जाएगी। हो सकता है कि मुझको भी मंत्री कुछ बना दिया जाए, मंत्री संतरी कुछ बना दिया जाए आगे जाकर के, पर दैट्स अ सेपरेट इशू। नहीं राजीव जी, ऐसा है जी कि देखिए, कठिनाइयों का दौर सभी के जीवन में आता है जी। तो हिंदुस्तान के दौर में भी आया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोरोना जाने के बाद में जो परिवर्तन मोदी जी में आया है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी आया है, वो आप में भी आ सकता है। गणेश खानकर साहब, वी आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। आप हो गए, पूजा मिश्रा जी हो गई, मुकेश गांधी जी हो गए। मुझे तो कभी कभी विश्वास नहीं होता कि नेशन नाउ को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है, very frankly speaking, but that's all thanks to all of you. You have been coming on the show and
talking very very nicely. But one thing is there, Ganesh Khankar साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर क्या अमेरिकन लोग जो हैं, ये जब से ये टैरिफ का मामला शुरू हुआ है, आई हैव बीन आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डोंट अमेरिकन्स अंडरस्टैंड दैट दीज टैरिफ्स विल हैव टू बी पेड बाय देम? ये टैरिफ जो हैं, जो ट्रंप साहब लगा रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, अरे भाई भारत के ऊपर अगर आपने 50% टैरिफ लगा दिया तो भारत की जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यू हैव टू पे 50% एक्स्ट्रा. हु पेज फॉर दैट? द अमेरिकन कंज्यूमर. ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या गणेश खानकर साहब? आप बताएं सर प्लीज. ऐसा है राजीव जी, मैंने आपके चैनल पर ही, याद कीजिए, मैं तकरीबन शायद 1 महीने पहले मैंने एक बात कही थी, शायद उस समय आपने इस बात को गंभीरता से सुना होगा. मैंने ये कहा था कि ट्रंप अब क्या करेंगे और क्या बात करेंगे शायद ये ट्रंप को ही पता नहीं होगा. तब ये बात शायद आपको लगी होगी कि मैंने सिर्फ इसीलिए कही है कि मेरे सामने दूसरे पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं. देखिए, ऐसा है कि दुनिया में कोई देश परमानेंटली किसी का दुश्मन नहीं होता है और कोई देश परमानेंटली किसी का दोस्त नहीं होता है. यहाँ पर जो इकोनॉमी और बायोलैटरल रिलेशंस जो होते हैं वो एक दूसरे के हाथ में बंधे हुए होते हैं. एक हाथ से दो, एक हाथ से लो. यूएसएसआर यानी रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो एक अलग दोस्ती के रिलेशंस है, क्योंकि हम जो तीसरी दुनिया बन रही थी कोल्ड वॉर के समय, हम अपनी भूमिका लेकर चल रहे थे. रशिया को एक अपनी दोस्ती के लिए जो हमने हाथ बढ़ाया, रशिया ने भी उसका साथ दिया और हम देख सकते हैं ये बरसों से चल रहा है. अमेरिका में, यूएसए में अभी जो ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जिन शर्तों पे लोगों से वादा किया था, जिन शर्तों पे वो अभी फिर से एक बार प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, वो आने के बाद हम देख सकते हैं कि उनकी बातों में, उनके काम करने का तरीका ये बिल्कुल बदलते जा रहा है. एक बात हम आज यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं क्योंकि हम भारत में बैठे, हिंदुस्तान में बैठे, लेकिन ये भी एक बात है कि अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है, एक मेजर पार्ट है जो इस बात को मान रहा है कि ट्रंप ये हमारे लिए कर रहे हैं. एक जमाना था जब दुनिया में लेबर स्कैरिटी थी, उस समय ये लेबर सस्ते में कहाँ मिल सकता है, तो उस समय उन्होंने एग्रीमेंट चाइना से की, भाई हम आपको चीजें देंगे, आप उसको बनाकर हमें देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारा व्यापार चलेगा. इस तरह की बात हुई. जब चाइना टेक्नोलॉजी में इनके साथ आकर खड़ा हो गया, तब जब ये बात यूएसए को लगी, तब वो जो कदम उठा रहे उसमें वो हम पर नहीं, दुनिया में बाकी सारे देशों पर भी इसी तरह की बात कर रहे हैं. लेकिन दुनिया के बाकी देश और हिंदुस्तान में क्या फर्क है, तो इंडिया इज नाउ अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. हम 4थे स्थान पर है राजीव जी, और आने वाले दिनों में हम 3रे स्थान पर जाने के लिए तैयार है. यदि हम 3रे स्थान पर जाएंगे तो ये सबसे बड़ा खतरा यदि किसी को है तो आज वो यूएसए को है. देखिए, चाइना की इकोनॉमी एक अपने आप में, जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक लोहे के दरवाजे के पीछे बैठी हुई है. हम बहुत जल्दी, आप उसमें ना तो घुस सकते हैं ना उससे एक बार जाने के बाद अब उससे बाहर आ सकते हैं. उतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी एक अलग सिस्टम से चलती है. हिंदुस्तान में जो आज जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ रेट है, यानी यहाँ जो लोग डेढ़ इकोनॉमी और ये सारे जो कहते हैं, मैं उनकी बातों में नहीं जाता हूँ, लेकिन 6.5 के ऊपर जब हमारी जीडीपी इस समय काम कर रही है, ये पूरी दुनिया में हम दूसरे तीसरे देशों की तरफ बात न करते हुए हम जो देख रहे हैं ना सामने, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो आने वाले दिनों में ये यूएस को होने वाला है. तो शायद ट्रंप की अपनी कार्यशैली हो सकती है, वे अपने आप को, अमेरिका को कुछ अलग जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, और ये बात छुपी नहीं है. जाते जाते इतना ही कहूंगा कि ट्रंप को नोबेल प्राइज जीतना. अभी तो आए, अभी जा रहे हैं. खानकर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बयान, जो कॉन्फिडेंस पूरे देश को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, नो कॉम्प्रोमाइज, नया भारत है, नया भारत विल नेवर कॉम्प्रोमाइज. मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. हमारे किसान, हमारे फार्मर्स, हमारे पशुपालक, हमारे मछुआरों, इनके इंटरेस्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग इफ इट अफेक्ट्स माय ओन इमेज. मेरा खुद का हर चीज स्टेक पर है, फिर भी मैं देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, हमारे किसान को. इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. किस प्रकार से देखते हो खानकर साहब? देखिए, ऐसा है कि
मोदी जी की कार्यशैली के बारे में विवाद हो सकता है। देश के कई बुद्धिमान लोग बैठे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, लुटियंस रोड पर बैठ के पूरी दुनिया को चलाने की बात करते हैं, लुटियंस रोड पर बैठ के हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलाने की बात करते हैं, राजनीति चलाने की बात करते जी। हैं, कॉलम्स लिखते हैं। शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने मोदी जी को करीब से देखा है, मेरे जैसे, भले मैं आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के नाते आपसे बात कर रहा हूँ राजीव जी, लेकिन एज अ पॉलिटिकल एनालाइजर, पॉलिटिकल वर्कर, और मैं ये सारा सब देखता हूं, तो मोदी जी का स्वभाव है, उन्होंने आज तक कभी भी झुककर राजनीति नहीं की। हर प्रसंग में मैं देखता हूं, जब ये 2014 से आज तक उनकी राजनीति देख रहा हूं, जब 2002 में वे दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे गोधरा के बाद में, मैं तब से तो नजदीक से देख रहा हूं। उनकी काम करने की अपनी शैली है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते गौरवान्वित महसूस करता हूं कि देश के प्रति बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। आज वो समय नहीं है राजीव जी, जी। बहुत सारे उदाहरण हैं। देश के विषय में मोदी जी कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं करते। बहुत सारे प्रसंग है कि जब उन्होंने फर्म रहकर जो बात की, गलवान की घाटी हो, ये आज का विषय नहीं हो सकता, लेकिन गलवान की घाटी में भी उन्होंने चाइना की तरफ डोकलाम में देखने का भी। अपना जो अंदाज बताया, तब ये लोगों को समझ में आना चाहिए था ये मोदी जी है। दूसरी बार जब पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस के बारे में हमारी पहली जनरेशन ने, हमने बस चला कर देखी, हमने क्रिकेट मैच खेल कर देखे, लेकिन जब ये ध्यान में आया कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, तो मोदी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, जो करना था वो कर दिया। अब वो कुछ हमारे बुद्धिमान उसके प्रूफ मांगते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये मोदी जी की काम करने की पद्धति है, और कम से कम देश के हितों के बारे में किसी भी स्तर पर मोदी जी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और वे एक बार बार बात कहते हैं जो हम गंभीरता से लेनी चाहिए हमें, यह देश मैं झुकने नहीं दूंगा। और वो हमेशा ये कहते हैं, यह देश गरीबों का देश है। क्योंकि देखिए राजीव जी, देश के गरीबों के उत्थान के बगैर हम राजनीति न कर सकते हैं, न देश सेवा कर सकते हैं, न देश को चला सकते जी। हैं। इसलिए अपना देश अभी एक अलग स्तर पर जा पहुंचा, ये मैं नहीं, IMF कह रहा है, और ये मोदी जी के कार्यशैली के कारण ही है। इस पर विवाद हो सकता है, कुछ लोगों को ये पसंद ना आए, लेकिन मैंने जो अब तक देखा है, मोदी जी कभी देश हितों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी, करते, दुरुस्त बात। इतना तो मैं तय से कह सकता हूं। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू पूजा मिश्रा जी। पूजा मिश्रा जी इस वक्त इलाहाबाद में, आई होप यू आर ऑलराइट मैम। आपके आसपास बहुत बाढ़ आई हुई है, पानी बहुत भरा हुआ है जी, हम देख रहे हैं, वी गॉट द फुटेज, वी गॉट एवरीथिंग, आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल। और उसके अलावा काशी में भी बहुत पानी भर गया है, मतलब आई डोंट नो व्हाई देयर वाज नो प्लानिंग। वहाँ के जो टाउन प्लानर हैं उनको साइड में कर दिया गया है, वो बेचारे बहुत पहले से बोल रहे थे कि यार ये मणिकर्णिका घाट के आसपास जो है आप कृपा करके बिल्डिंग्स ना बनाएं, क्योंकि पानी को जगह नहीं मिलेगी निकलने की। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड एंड वी बीन सेइंग इट राइट ओवर हियर इन मुंबई। मुंबई में बैठ करके हम लोग जब गुरुग्राम की बात करते हैं, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है, गणेश खानकर साहब सुनने वाली बात है कि जब बरसात का पानी आता है, इतनी जोर से आता है, तो पानी को समंदर तक जाने के लिए जगह चाहिए ना। अगर वहां पर आप बिल्डिंग बना देंगे तो पानी कहां से वापस आएगा? बट यू कैन टॉक अबाउट दैट सर्टेनली मैम, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द वे मिस्टर ट्रंप इज बिहेव्ड, अभी क्या है कि लोगों ने शायद ये बात नहीं करी है, गणेश खानकर साहब सुनने वाली बात है, हमारी दवाइयों पे जो जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका में बिक रही हैं उस पे ट्रंप हैज पुट 250% टैरिफ उस पे लगा दिया, 250%। What he does not realize is, which is exactly what most commentators like Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, and so on and so forth, everybody is asking Trump, who pays for this? American senators have been asking. You know what? In the senatorial hearing, in the congressional hearings of the Commerce Secretary of Mr. Trump, he was asked. अब ये सुनने वाली बात है सर, ध्यान से, आपको मैं I'll send you the footage. They said, the senator sitting over there from the Democratic Party, certainly not a Republican, he asked, who pays for this? Who pays for this? You know, the Commerce Secretary was not able to reply. He said, I represent people in America who import stuff from China, from India, from Brazil. These tariffs are hurting us. I'll have to shut shop and go. That's exactly what Trump is doing. पूजा मिश्रा जी, अब आप बताएं, जैसे अमिताभ कांत साहब जो CEO हुआ करते थे नीति आयोग के,
उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इसमें जो रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फटाफट पुश थ्रू कर दीजिए। एमएसएमई जो हैं, हमारे लघु उद्योग जो हैं, उनको और बढ़ावा दीजिए। मेक इंडिया इनटू अ टोटली सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। अब आप बोले पूजा मिश्रा जी, प्लीज। जी राजीव जी, आपको नमस्कार। और नमस्कार मैम। साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और हाँ, ये बहुत कंसर्निंग है। उत्तर प्रदेश में भी हालात जो बाढ़ को लेकर के बहुत सीरियस चल रहे हैं। थोड़ा कल रिलैक्सेशन था तो हम लोग बाहर भी निकले थे कि लगा कि थोड़ा कम हो रहा है, पर आज कल रात से फिर से जो है जैसे ये बारिश बढ़ गई है और बढ़ने के बाद में अलर्ट भी जारी हो जा रहे हैं। हर घंटे आपको अलर्ट मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियस है। गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की हुई है वो एक डिफरेंट इश्यू हो रखा हुआ है। अब आ जाते जो आपने कहा कि ये ट्रंप ने जो टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, ये वाकई में भारत देश के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जेनेरिक दवाई की तरफ में एशियन कंट्रीज जो है मैक्सिमम शिफ्ट कर रही हैं। जेनेरिक दवाई की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। हम चाहें तो हम फोकस करके मार्केट डेवलप कर सकते हैं कि हमें नहीं जाना अमेरिका। अमेरिका ही टैरिफ कर रहा है ना, बाकी सारे और देश तो हम पे टैरिफ इम्पोज नहीं कर रहे, उनको चाहिए तो हम चले जाते हैं दूसरे कंट्री की तरफ में और हम उन कंट्रीज में जाकर के सप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में एक और अच्छा ऑफर आया हुआ है कि हम हर सेक्टर में हम अपना मार्केट क्रिएट कर ले और अपने तरीके से जो अपने देश की चीजें हैं उनमें कार्य कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। इस मामले में चाइना बहुत बेहतरीन लगता है। चाइना जो है गूगल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, चाइना यूट्यूब भी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। चाइना की अपनी हर एक चीज उस कंट्री की अपनी है। तो अगर इंडिया के पास में अभी बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ है, इसको जो है एक्सरसाइज करें। मैं फिर तारीफ करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि एग्रो और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, अमेरिका बार बार उस पर जो है बात करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि उन पे जीरो टैरिफ हो सके, टैरिफ कम से कम इम्पोज किए जाए, और इंडिया अड़ा हुआ है कि वो नहीं करेगा। और ये बहुत सही डिसीजन है। हम आशा करते हैं कि हमारा भारत देश ऐसे ही अड़ा रहे और अपने चीजों पे, जो आपने कहा ना कि एमएसएमई पे फोकस कर लेना चाहिए। हाँ, पोस्ट कोविड एमएसएमई बहुत धड़ाम से गिरा हुआ, तो उस पे फोकस करके उसको ग्रो करना चाहिए। जो हमारे खुद के जो बुनकर हैं, टेक्सटाइल है, जो कहीं ना कहीं खो गए हुए फिर आकर के निकल रहे थे फैशन में, तो उन सब चीजों पे फोकस करके हम मार्केट क्रिएट करें। मार्केट ऑलरेडी हमारे पास में है, अगर हम उसके आगे बढ़ेंगे तो ये भारत देश के लिए बहुत अच्छा अवसर है। हाँ, पोस्ट कोविड के जो इकोनॉमी की बात की जाती है, वो इकोनॉमी जो के शेप है, अगर शायद ये मार्केट डेवलप किए जाएंगे, जो हमारे वो कहते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल रियल सेंस में भी अवसर मिला हुआ है आपको। हो जाइए। बहुत सारे कंट्रीज है जो बैठे हुए हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में खड़े हैं। क्योंकि अमेरिका को इससे क्या नुकसान होने वाला है ये सबको पता है कि भाई अगर आप इम्पोज करेंगे टैरिफ तो सामान यहीं से जाना है। लास्ट अगर हम देखेंगे तो हमने जो है अमेरिका को जितना सामान भेजा हुआ है उसका 50% हमने वहां से निर्यात किया हुआ है। हम आयात ज्यादा करते हैं अमेरिका को। उसके बावजूद भी अगर अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है और इम्पोज करना है अपनी शक्ति दिखाने के लिए, तो करते रहे। ये उन देशों के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है। मैम, स्लाइड करेक्शन जी, America is the one market where the trade deficit is in our favor. हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं in terms of goods, which is why ट्रम्प साहब का दिमाग खराब हो गया है कि ये ट्रेड डेफिसिट हिंदुस्तान के साथ कैसे है। there's a $40 billion trade deficit. India actually exports about $99 billion worth of goods to America, and we import somewhere around $39-40 billion worth of goods from America. That is the situation today. जी आप बोलिए। राजीव जी, मुझे लगता है कि आयात और निर्यात में दिक्कत हुआ। I know that. I was saying that. But I was trying to say that. Fine. I wanted the viewers to know. Yes. पूजा जी, अखिलेश यादव जी has criticized. बोले it's a failure of foreign policy. Foreign policy fail हो चुका है. That's what अखिलेश यादव जी ने कहा, और बोले ये टैरिफ is going to affect our economy. हमारे इकोनॉमी को तकलीफ देने वाला है, हमारे किसानों को तकलीफ देने वाला है, हमारे नौजवानों को तकलीफ देने वाला है। क्रिटिसिज्म ऑफ अखिलेश यादव जी, बोलिए। प्रदीप जी, डेफिनेटली अगर टैरिफ इम्पोज हो रहा है तो ये अमेरिका के साथ में
हाउडी मोदी और अगर जो है नमस्ते ट्रम्प होने के बाद में अगर टैरिफ इम्पोज हो रहा है, पर ये फेलियर अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप का फेलियर होगा। इंटरनेशनल रिलेशन पर मैं फिर कहूंगी कि ये इम्पैक्ट करेगा, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, पर एट द सेम टाइम ये बहुत जरूरी है कि आप जो है उसके सामने झुकना नहीं है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सजेशंस रहे हैं कि हम जो है भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी चीजों को जो है अपने तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक कई बार नहीं रखती हूँ कि ये जो कहना कि अगर अमेरिका जो है इम्पोज कर रहा है तो ये फेलियर है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, बट एट द सेम टाइम आपको फर्म रह करके स्टैंड रखना पड़ेगा भारत देश के लिए, और ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। तो विदित भी कह रहे हैं, हम लोग अभी मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स के लोगों के कि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे अगर अमेरिका का रवैया यही रहने वाला है तो इस रवैये के साथ में अगर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो मंदी आने के आसार हैं विश्व में। इसीलिए आपको पता है कि मंदी से लड़ने के लिए मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी, मैंने गैट भी पढ़ लिया कि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो है फॉर्मेशन हुआ था, वो गैट का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था ताकि देश सारे के सारे आगे बढ़ सके, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ जो है टैरिफ एंड ट्रेड किया गया हुआ था। उसके बावजूद भी जो है अभी वो कोई एग्रीमेंट था, कोई जो है ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते, अमेरिका उसको वायलेट करता रहा, वो हमेशा से ये झुकाव की तरफ रहा कि जो डेवलप कंट्रीज है उनको फेवर करता। जी, do we have Pooja Mishra ji still with us? Can we go to Mukesh Gandhi sahab? Right, Mukesh Gandhi sahab, let me put it to you, Mukesh Gandhi sahab. हाँ जी, सबसे बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान का क्या है आज? सर हम लोग 156 करोड़ हैं, दैट मीन्स 156 करोड़ कस्टमर्स, याद रख लीजिए 156 करोड़ हैं हम लोग अभी। आप अगर आज हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनका स्तर अगर बढ़ जाए, आर्थिक स्तर अगर बढ़ जाए, यू डोंट इवन नीड टू सेल एनीवेयर एल्स। वी आर नॉट लाइक चाइना। चाइना में क्या है कि चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी गुड्स, चाइना इज द बैक ऑफिस फॉर लुई विटॉन, फॉर जॉर्जियो अरमानी, फॉर DKNY, फॉर कैल्विन क्लेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया में जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, दे कैन इजीली बी सोल्ड टू इंडियंस। वी हैव अ ह्यूज मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गॉट ब्राजील, यू गॉट चाइना एंड यू गॉट रशिया। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जो ट्रंप साहब हैं, क्योंकि मोदी साहब ने मना कर दिया कि इंडिया विल नॉट बी अ क्रिप्टो करेंसी हब, मतलब आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है ट्रंप साहब की, जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने डील करी है, वो हिंदुस्तान नहीं करेगा। यू नो, क्रिप्टो करेंसी इज एट द मोमेंट द चॉइस ऑफ एक्सचेंज अमंग ऑल ड्रग लॉर्ड्स। जितने भी ड्रग माफिया हैं पूरी दुनिया में, इट इज देयर चॉइस ऑफ करेंसी, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो F-35 है हम लोग नहीं खरीदेंगे। आपके जो बाकी डिफेंस एक्विजिशन आप चाहते हैं कि हम लोग लें, हम वही लेंगे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या नेवी रेकमेंड करेगी, उसके अलावा हम नहीं लेंगे। और अगर आप हमें देने की कोशिश भी करेंगे, अगर हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं है तो हम आपको जयराम जी की बोल देंगे, सीधी बात है। एंड नंबर 3, जहां तक अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सवाल है, मोदी जी ने क्या कहा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, थैंक यू वेरी मच, वील प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। नंबर 2, डेयरी फार्मिंग, वील प्रोटेक्ट आवर डेयरी फार्मर्स। नंबर 3, फिशरीज, वी शैल प्रोटेक्ट आवर फिशरीज। अगर आपको भैया भारत के साथ ट्रेड नहीं करना हो, जयराम जी की, अब आप बोले मुकेश गांधी साहब। देखिए ये ट्रम्प साहब को इतना बड़प्पन आ गया है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊंट जब है ना, वो पहाड़ के नीचे जब तक आता नहीं तब तक उसको एहसास नहीं होता कि उसकी हाइट कितनी है। आज ट्रम्प एक टॉप के ऊपर खड़े हैं और हमारा इंडिया नीचे बॉटम पे खड़ा है, पहाड़ के नीचे। पर जिस तरह से मोदी जी अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को आगे ला करके बढ़ा रहे हैं, और लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और विकास के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं ना, उसका एहसास अभी तक ट्रम्प को नहीं है। ट्रम्प क्या है बेसिकली, वो एक्चुअली आप देखेंगे ना तो वो एक कंस्ट्रक्शन रियलिटी का काम करने वाले थे। बाद में जब मैंने उनका एक कहीं पढ़ा है कि वो बीच में तो लाइव शो, जैसे हम आप जैसे शो करते हैं ना सर जी,
राजीव जी, जी। वैसे वो रियलिटी शो करते थे जी करते थे। और वो उसने 2004 से 2019 तक, अरे 17 तक ये रियलिटी शो का काम किया है। आज भी जो उनका एक प्रेसिडेंट होने के बाद में जो नाटक चलते हैं, एयरपोर्ट पे इंटरव्यू देना, इधर बोलना वहां बोलना, कल क्या बोला आज क्या बोला, फिर डांस करना, ये करना, ये रियलिटी शो की उनकी इफेक्ट है अमेरिका की। जी तो ये जो ट्रंप जो है वो जो कर रहा है उसकी भी टर्म जो है मेरे ख्याल से 2028 तक तो पूरी हो जाएगी। जी और बाद में जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, अमेरिका का। क्योंकि अंदर के जितने भी इनके जो सेनेट मेंबर है, दे आर वेरी अपसेट विद द ट्रम्प। और आज से मुझे अमेरिका से मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं जो पॉलिटिकल विजन रखते हैं, उन्होंने कहा है कि विद इन शॉर्ट टाइम और मैक्सिमम टू 28 जेडी वेंस विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। एंड जेडी वेंस इज नोइंग and the Indian position and he is very favorable to India. That is the next chapter. But आप देखिए कि मोदी जी ने अंडर करंट में, राजीव जी, जी इतने अच्छे भारत के बाहर इतने अच्छे अच्छे मित्र बनाए हैं और ब्राजील को तो उन्होंने अपना भाई बना दिया है। और आप देखिए कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी के अंदर आज हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस है। हमने लास्ट 23-24 के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हमने 160 बिलियन का बिजनेस उनके साथ किया। वैसे ही एशियन कंट्री के साथ हमने 118 करोड़ बिलियन का बिजनेस किया और अमेरिका के साथ हमने 118 करोड़ का बिजनेस किया। जी दुरुस्त बात। तो ये अलग अलग ये करके जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से फॉरेन में अमेरिका के सिवा खास करके तो जीसीसी, आज हमारे भारत के मुसलमान हमारे साथ में, जो विद्रोही है वो जो हमारे राष्ट्रीय मुसलमान है वो हमारे साथ में ही है, मोदी जी के साथ में ही है। पर जो पाकिस्तानवादी मुसलमान है उनको जानना चाहिए कि आज गल्फ कॉरपोरेशन बनाने के बाद में, जीसीसी बनाने के बाद में, आज फॉरेन की मुस्लिम कंट्रीज में हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट है, अरे एक्सपोर्ट है। और हमारे इंडिया ने भी उनका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई में उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत जबरदस्त हुआ है। गांधी साहब, तो मेरी बात एक कहने का मतलब ये क्या है कि ये जो गोदी मीडिया वाले जो आजकल जो बकवास कर रहे हैं मोदी जी के बारे में कि हमारे ये इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब एक्सपोर्ट ड्यूटी, फलाना दिखना बढ़ने के कारण भारत पीछे चला जाएगा, मैं तो कहता हूं कि मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि भारत अभी जबरदस्त प्रोग्रेस करेगा और सेल्फ सफिशिएंसी में चाइना से भी आगे निकल। कांग्रेस का कहना अलग है। मुकेश गांधी साहब, जयराम रमेश ने आज ही स्टेटमेंट दिया, डिप्लोमेटिक फेलियर द हाईएस्ट है। डिप्लोमेटिक फेलियर ऐसा है कि आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल, तथाकथित फील्ड मार्शल को दूसरी बार ट्रंप ने बुलाया, दूसरी बार समन, एक्चुअली ट्रंप ने बुलाया, इन्हें समन किया, मिस्टर फील्ड मार्शल प्लीज कम हियर। He said that's an achievement. That's an achievement for Pakistan and a diplomatic failure for India. जयराम रमेश बोले यहाँ पर यूएस का एम्बेसडर तक नहीं है इंडिया में। यह हालत है, यह आलम है कि यहाँ पर आज के तारीख में you don't have an Indian US ambassador in India and Asif Munir has been called, summoned by Trump the second time. Diplomatic failure for India. How do you see that, Gandhi साहब? सर प्रदीप जी, डिप्लोमेटिक फेलियर तो ट्रंप का हुआ है। आज पाकिस्तान के जैसे आतंकवादी देश प्रूव हो गए यूनो से लेकर के वहां की सारी काउंसिलों में, और वही पाकिस्तान के मुनीर को वो बुला करके अपना सम्मान करते हैं। इट प्रूव्स दैट ट्रंप इज नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बट इज द बिजनेसमैन ऑफ अमेरिका। वो सबसे बड़ी बड़ी गिफ्टें लेते हैं इनके साथ में। अभी जैसा राजीव जी ने बताया वैसा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस पाकिस्तान के साथ करते हैं, चाइना के साथ कर गए तो भी उनकी अर्थ एलिमेंट के लिए लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज चाइना ने भी उनके साथ कर लिया। उसके सामने तो डिप्लोमेसी हमारी भारत की है कि आज तक भारत कहीं झुका नहीं है, और झुकने के बाद में भी कल कुछ तकलीफ आएगी। जिस तरह से आपको याद होगा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जब पाकिस्तान में वॉर हुआ तो जय जवान जय किसान का नारा लेके भारत के लोगों को कहा था
कि हमको अमेरिका से अगर गेहूं नहीं आएंगे तो हम हर सोमवार को एक टाइम खाएंगे, पर हम फॉरेन के गेहूं के लिए हमारा ईमान नहीं बेचेंगे, हमारा धर्म नहीं बेचेंगे और हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा करके लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे स्पिरिट खड़ी कर दी थी, गांधी जी ने भी हिंद छोड़ो करके एक मुट्ठी नमक लेकर के अंग्रेजों को आह्वान दिया था। आज उसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी अपनी आत्म सुरक्षा के साथ में हमारा भारत झुकेगा नहीं, ये जो बात से ट्रंप इतना बौखला गया है, इतना नर्वस हो गया है कि डिप्लोमेसी तो उसकी डाउन हो गई है। बाकी डे बाय डे जी मुझे तो दिखता है कि मोदी जी के चेहरे पे निखार आ रहा है और भारत एक स्वर्ण काल के अंदर अपना प्रवेश कर रहा है। लेट मी गो अक्रॉस टू गणेश खनकर साहब। गणेश खनकर साहब, दो चीजें सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए 50% आपने टैरिफ लगा भी दिए, हो सकता है इट विल हैव एन इम्पैक्ट सर्टनली, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बाय इंडियन गुड्स। अमेरिका में जो कस्टमर्स हैं उनका भाई 50% ज्यादा और कौन देगा, क्योंकि जो इंपोर्टर्स हैं वो पूरा का पूरा बर्डन तो अपने ऊपर लेंगे नहीं, दे विल पास इट डाउन टू द कंज्यूमर। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द सेल्स ऑफ इंडियन गुड्स माइट गो डाउन इन अमेरिका। और यहां पर इंपैक्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, एक दो इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स हु पेंट अ वेरी सीरियस पिक्चर, लेकिन ये 1% से ज्यादा, इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी अबाउट 0.2 to 0.5%। हमारे जीडीपी को ये 0.2% से इफेक्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट इफेक्ट अस एट ऑल, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। और यहां पर दूसरी चीज क्या है, जैसा अभी मैंने कहा गणेश खानकर साहब, हिंदुस्तान में 150 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर हैं। वी कैन प्रोड्यूस फॉर इंडिया, भारत के लिए ही अगर हम लोग प्रोड्यूस करें यूजिंग द विलेज एज अ यूनिट, सर आवर जीडीपी विल गो अप टू ऑलमोस्ट 9 to 10%। यस, वेरी गुड सर। अब आप बोलें सर गणेश खानकर साहब। बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने। थैंक यू सर। गणेश खानकर जी। राजू जी, ऐसा है, अमेरिका के साथ में इस तरह के रिलेशंस में अपने लिए दिक्कत आना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। यस, देखिए, याद This कीजिए is the third time. 1998 में जब हमने थर्ड पोखरण टाइम, में विस्फोट किया था, तीसरी बार। जी हाँ, हाँ, तीसरी बार हुआ है सर, ये तीसरी बार। जी आप बोले। नहीं नहीं नहीं, जी यानी मैं वो बात नहीं, अटल जी ने पहली बार, यानी जी ये मैं कह रहा हूँ 71 और ये वो विषय नहीं, 1998 में जब हमने ये विस्फोट किया था, आपकी बात सही है, वो तीसरी बार हुआ होगा, लेकिन याद कीजिए उस समय भी अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, लगाए थे। बहुत सारे विषयों के बारे में उस समय उन्होंने बात कही थी, और उस समय भी ये डर था कि शायद हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स घट जाएंगे, शायद 1991 में जो सिचुएशन आई थी वो शायद आ सकती, इस तरह का भी उस समय कुछ लोगों ने माहौल बनाया था। लेकिन याद कीजिए राजीव जी, जिस तरह से उस समय की सरकार ने कदम उठाए, अपने भारतीयों ने उस समय मेहनत की, फिर जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री उभर कर आई, और विशेषतः ऊर्जा क्षेत्र, यानी मुझे आज भी याद है 2002 या 3 में उस समय रिकॉर्ड स्तर पर पूरे देश में एनर्जी सेक्टर में हम हाई पीक पर गए थे, जी बावजूद इसके कि अमेरिका के कुछ प्रतिबंध हम पे लगाए हुए थे। देखिए, ऐसा है, मोदी जी को जितना मैंने देखा है, वे चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं, कि आज तक उनके राजनीति में काम करने का उनका तरीका रहा है। अभी जो गांधी जी कह रहे थे, मुझे जो लगता है कि हमारे लिए सुनहरा मौका है। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप बार बार ये सारे देशों पे टैरिफ लगाने का काम करने के बाद, जो छोटे देश है उनमें एक्सपोर्ट करने की अपनी उम्मीद अब बढ़ सकती है। एक बात तो तय है कि हमारे फार्मर्स की रक्षा करने के लिए मोदी जी ने जो ये कदम उठाया हुआ है, पूरा देश अब इसके साथ खड़ा हुआ है। जी और जब ये कुछ करने की लगन, यानी एक अच्छा उदाहरण दिया कि इससे पहले लोग श्रावण महीने में कई उपवास नहीं करते थे क्या, तो करते होंगे। जय जवान जय किसान कहने के बाद में मैं पूरे सप्ताह में एक दिन मेरी आध्यात्मिक विषय को जोड़कर मैं इस खाने की कमी को पूरी करने के लिए क्या मैं एक दिन का उपवास कर सकता हूं? तो साहब, पूरे देश ने इस बात को मान लिया। जब देश खड़ा होता है, और आज तो हम 150 करोड़ है साहब, और जब हम एक साथ खड़े होंगे, और जिस तरह से स्टार्टअप, यानी अभी जिसकी बहुत बातचीत होती है कि डिफेंस के क्षेत्र में जिस तरह से ये ड्रोन का इस्तेमाल और अपने लोगों ने
जो छलांग लगाई हुई है, अब ये हमें मौका है अमेरिका के सामने खड़ा होने के लिए। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता साहब। और मैं जितना देख रहा हूं, देखिए ऐसा है कि ट्रंप कितनी भी बात करे, सर आज अमेरिका कर्जे में डूबा हुआ है। ये बात अमेरिकी इकोनॉमी को भी पता है। वहां हर 4-6 साल के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा डाउनफॉल आता है। अमेरिका में मंदी आती है। इस मंदी का इफेक्ट अमेरिका पर तो होता ही है, लेकिन ये इफेक्ट पूरी दुनिया में जाने का एक अलग चलन चल चुका है। इसके कारण कई देशों में इकोनॉमी निचले स्तर पर जाती है और वे उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हमें मदद करे यहां से बाहर निकलने के लिए। देखिए ट्रम्प ये जो सब कर रहे हैं, ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात कर रहे हैं। बहुत सोची समझी एक आगे की भविष्य की राजनीति का एक अंग है। लेकिन अपना पूर्वानुभव देखते हुए, जैसे 1998 में पूरा देश पोखरण के समय खड़ा हो गया था अटल जी के साथ में, ये हमारे लिए मौका है। और आज समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी आज यहाँ पर है, उन्होंने जो बात कही, तो मुझे लगता है आपस की राजनीति ये देश में चलती रहेगी, ये एक अलग बात है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन पूरे देश के मामले में जब ये विषय होता है और पूरे देश जब एक साथ खड़ा होगा हमारे किसी सामने वाले देश को आह्वान देने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमने गंवाना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि देश खड़ा होगा। कानकर साहब, राहुल गांधी जी बीजेपी हमेशा इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को साथ में लेके वोटों का चोरी करता है। यू स्टील वोट्स, वोट का चोरी करता है। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए आपने पुलवामा को क्रिएट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर क्रिएट किया। यू वांटेड टू बीट इनकम्बेंसी, यू वांटेड टू फाइट, यू वांटेड टू विन, दैट्स व्हाई आपने ये सब क्रिएट करके इलेक्शन कमीशन को साथ में लेके आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन चलाने राहुल गांधी जी। और उन्होंने कहा मैं कोई एफिडेविट दूंगा नहीं, मेरा जबान जो बोलता है वही ओथ लेकर समझे, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कानकर साहब, थोड़ा सा नंबियार जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। दे दिया आपको। ऐसा है कि मैंने ये बहुत बार कहा है कि अपने देश में एक संसदीय परंपरा है और अपने देश में जनतंत्र चलता है। देखिए कोई भी पॉलिटिकल फिगर जब लोगों के सामने बात करता है तो लोगों की तालियां मिले इसलिए वो बात करता है। जब आप पार्लियामेंट में, असेंबली में बात करते हैं साहब, तो उस समय आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ विद प्रूफ आपको बात करनी होती है। देखिए पार्लियामेंट और असेंबली में आप जब बात करते हैं ना साहब, उस पर किसी भी कोर्ट में डिफर्मेशन का केस नहीं हो सकता। लेकिन आपने यदि पब्लिक मीटिंग में यदि आपने कुछ बात कही किसी के भी बारे में, और इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट या ये सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में जब आप टिप्पणी करते हैं तो साहब आप संस्थागत किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिनको आधार है उनके बारे में आप कहते हैं। राहुल गांधी जी ये बार बार कहते हैं, राजीव जी मैं आपको दो चीजें सिर्फ बताता हूँ। मैं गए 3 लोकसभा के चुनाव, उत्तर मुंबई के मैं जिलाध्यक्ष के नाते काम कर चुका हूँ और मैं चुनाव का प्रमुख था साहब। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में, पूजा मिश्रा जी भी यहाँ बैठी हुई है, हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन का रोल होता है ना सर, वो 3 बार देता है। 1 बार नहीं, 3 बार देता है। जब उसकी सप्लीमेंट्री एडिट होकर आती है उसके बाद भी वो 3 बार देता है। क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने ये नाम डुप्लीकेट आए हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, ये उस समय कंप्लेंट क्यों नहीं की? एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज दैट राइट, उनको देना ही पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। दूसरी बात, जब इलेक्शन खत्म होता है तब शाम को जब आपके पोलिंग एजेंट आपके पोलिंग पर बैठे होते हैं, उनके पास 17C फॉर्म होता है साहब, जिसमें आपके जो ईवीएम में वोट पड़े होते हैं ना साहब, उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। उसमें गड़बड़ी हुई तो साहब काउंटिंग रोक दी जाती है। अब ऐसी तो कंप्लेंट कभी कांग्रेस ने नहीं की। दूसरी बात, वीपैट राउंडमली आप किसी भी वीपैट को लाइए और ईवीएम की वोटिंग और वीपैट की उस बूथ की काउंटिंग को मैच किया जाता है। अब ये सारी घटनाएं पूरी हुई, अब 6 महीने के बाद आप ये कहोगे कि मैं कहता हूं उसको सुन लो, और जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आप यदि कुछ बातें हमारे बारे में कहते हैं तो आप हमें इसका एफिडेविट दीजिए, मैं कहते हैं मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। जब लोकसभा में महाराष्ट्र में आपकी 30 सीटें जीत कर आई,
जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली, तब वोट में गड़बड़ी नहीं थी। तब ऐसा नहीं कहा राहुल गांधी जी ने कि हम लोकसभा में नहीं जाएंगे, तब तो चले गए। अब जब 6 महीने के बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने उसी रोल को तो किया है साहब, अब उसमें कौन सा, यदि राहुल गांधी जी को लगता है तो साहब ऐसा है कि PLA1 एंड PLA2 की जो सिस्टम होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी का उस बूथ का एजेंट ये इलेक्शन के कमीशन के साथ में ज्वाइन होता है। अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं क्या? मतलब मेरी समझ में नहीं आता, आप जो बात कहते हो उसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि ये सारी बातें राहुल गांधी जी आप मानते हो, तो जो बिहार में इलेक्शन कमीशन ने किया कि हर घर जाकर, उन्होंने घर पर बैठ के नहीं किया, वे हर घर पे गए, पोलिंग एजेंट के साथ गए, पार्टी के सारे BLA1 BLA2 के साथ गए और 40 दिन में बिहार की पूरी मतदाता की सूची उन्होंने बनाई। कल की घटना से यह सिद्ध हुआ कि SIR के बारे में राहुल गांधी जी मार्च निकालते हैं, नई यादी के बारे में राहुल गांधी जी मार्च निकालते हैं। यानी सीधी सीधी बात है साहब, मेरे पास यदि कोई प्रमाण नहीं है तो मैं यही कहूंगा, मैं हूं राजा, मैंने राजा के घर जन्म लिया है, मैं जो कहूंगा आपने मानना चाहिए। मैं कहूंगा कि गधे को 3 पांव है तो गधे को 3 पांव है, मैं कहूंगा गधे को 4 पांव है तो 4 पांव है। साहब ये जनतंत्र है, आपको बात कहने का अधिकार है, लेकिन यदि किसी ने ये कहा कि सर ये गलत है तो उसे झूठ साबित करने के लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। आप प्रमाण भी नहीं देना चाहते, ऐसे कैसे हो सकता है? Right, so let me go to Pooja Mishra ji. Pooja Mishra ji, there are two things here and I would like your opinion on them. Number one, राहुल गांधी साहब ने जो कुछ कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में, उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। नंबर 1। नंबर 2, I am again getting lots and lots of reports from उत्तर प्रदेश कि वहां पर फिर जो फ्लड रिलीफ मेजर्स है मैम, वहां पर बहुत तकलीफ हो रही है। I am so sorry for bringing that up again and again. This is for my viewers. I don't know how many viewers would be interested, but that's a listen, that can be avoided. Let's be very clear. मैंने पिछली बार भी बोला था कि योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। He can learn from देवेंद्र फडणवीस जी। मैम पूजा मिश्रा जी, महाराष्ट्र में जितनी बड़ी बाढ़ आती है ना हर साल, कहीं नहीं आती होगी, मैं बता रहा हूं आपको। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, यहाँ का जो सेक्रेटेरिएट है, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के जो रिलीफ मेजर्स वाले जो लोग हैं, म्यूनिसिपैलिटी के जो लोग हैं, हमारे जो छोटे से छोटा जो पीएन भी होता है, उसको मालूम है उसकी ड्यूटी क्या है कि यहां पे बारिश आने वाली है, यहां पे पानी रुकेगा, कौन सी स्कूल बिल्डिंग हम लोगों को टेक ओवर करनी है, कहां पर जाकर के रिलीफ एंड रेफ्यूज एंड रिलीफ मेजर्स हम लोगों को लेने। डू यू नो, नॉट अ सिंगल ट्रेजेडी हैज हैपेंड मैम। महाराष्ट्र में डूब के कोई नहीं मरा है पिछले 5 साल में, अनलेस एंड ऑफ कोर्स देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। सो व्हाई कांट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लर्न फ्रॉम महाराष्ट्र? भाई दोनों एक ही पार्टी है ना। अब आप बताएं ना मैम। राजीव जी, आपको लग रहा हो कि गवर्नमेंट सीख नहीं रही है। गवर्नमेंट जब जो है महाकुंभ की तैयारी कर रही थी तो बहुत ब्लंडर कर रही थी, और आपके डिबेट में ना जाने हमने कितने डिबेट में कहा था कि जैसे ही बरसात चालू हो रहा है, ये ब्लंडर जो है इलाहाबाद वासियों को भारी पड़ेगा, और ये भारी पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तैयारी कर लेती, गवर्नमेंट को आइडिया ही नहीं रहा कि उन्होंने शीवर को ब्लॉक कर दिया है तो ये पानी कहां तक जाएगा। जहां पे पानी कभी नहीं पहुंचता था, पानी वहां तक पहुंचा है। जहां पे पानी घुटनों तक होता था, वो जो कमर तक आ रखा हुआ है। अब की 2013 जैसी बाढ़ नहीं आई है, और सरकार हमारा अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में आपका चैनल नहीं है, नहीं तो फिर आपको पता चलता कि अगर आप ऐसे प्रश्न उठाएंगे तो आपके साथ में क्या किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, फिर आप लड़ रहिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, उन कैंपों में जो बाढ़ राहत कैंप है, उन पे जाकर के जो है रोज अपना फूड पैकेज देते हैं अपनी तरफ से। वहां पे जो लोग हैं उनको जितनी मदद कर सकते हैं वो करते हैं। तो अभी जो है कल ही की बात है, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं, वो लेकर के गए वहां कैंप में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उनको रोक दिया गया, बोला गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया फूड पैकेज नहीं दिया जाएगा इस राहत शिविर में। वो घंटों वहां पे बैठ करके प्रोटेस्ट करते रहे। प्रोटेस्ट करने के बाद में जब जो है फिर वो कह रहे वेरिफिकेशन करेंगे हम फूड का। भाई करिए, आप तो बासी दे रहे हैं। बासी देने के बाद में मंत्री महोदय प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि फूड पैकेज उनको बासी क्यों दिया जा रहा है रिलीफ कैंप में।
और उसके बाद में तब जाकर के वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और समाजवादी पार्टी के लोग बहुत सारे लगे हुए संगठन यहाँ पे कि अब जाकर के जो रिलीफ कैंप है या फिर अपने खुद से भी कैंप बनाई हुई समाजवादी पार्टी ने एक रिलीफ कैंप बना रखा हुआ है कि अगर कोई बाढ़ पीड़ित है तो उसको वहां पे एकोमोडेट किया जाए। पर सरकार का रवैया जो है वो उदासीन था, है और न जाने कब तक रहेगा। यहाँ पे करप्शन जो है बहुत हाई है। करप्शन इतना हाई है कि उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड चला हुआ है राजीव जी, पता नहीं आप लोग को जानकारी है कि नहीं है। यहाँ पे हर दूसरे दिन एक मंत्री बैठ जाता है धरने पे। एक मंत्री राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री जो है बैठेगा धरने में। प्रतिमा शुक्ला बैठी हुई थी, वो महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री हैं और वो धरने पे बैठती हुई एक एसएचओ के अगेंस्ट में कि एक एसएचओ ने गलत एफआईआर दर्ज कर दिया तो उनको 2 दिन धरने पे बैठना पड़ा, तब जाकर के कहीं पे एक्शन हुआ। उसके बाद में एक ग्राम सभा में 20 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वहां के राज्य मंत्री महोदय कॉल करते हैं जेई को, जेई कहता है कि अगर आपको ट्रांसफार्मर बदलवाने की इतनी पड़ी हुई आप जाकर के खुद बदलवा लीजिए। जब वो वहां पे जाते हैं तो बिजली विभाग पूरा लग जाता है कि नहीं ये ट्रांसफार्मर नहीं बदलनी चाहिए और राज्य मंत्री फिर वहां पे धरने पे बैठते हैं। अभी आज की ही तारीख में हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो कृषि मंत्री जाते हैं क्योंकि यूरिया से प्रताड़ित है किसान, यूरिया नहीं मिल रहा है किसान के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। और जब वो कृषि मंत्री जाते हैं वहां पे यूरिया मांगने के लिए तो जो सेंटर होता है वो जो 250 रुपए का यूरिया है जिसमें 45 केजी वजन घटा करके पहले 50 आया करता था 45 कर दिया गया हुआ है, वो कृषि मंत्री को ही 500 में बता देता है। अब कृषि मंत्री फिर 2 सेंटर्स को जो है तुरंत निष्कासित करते कि ये सेंटर्स को जो है रजिस्ट्रेशन का कैंसिल किया जाता है, इनको नहीं दिया जाएगा यूरिया। तो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और मंत्री महोदय हमारे यहाँ पे जो है ऊर्जा मंत्री जो है AK शर्मा जी, वो कहते हैं कि मैं एक जेई का ट्रांसफर नहीं करा सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। तो आपको लगता है कि मैं प्राइवेटाइजेशन पे जो है डिसीजन ले सकता हूँ? जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर इलेक्ट्रिसिटी का विरोध चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये मंत्री कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, एक हफ्ते में 4-4, 5-5 विधायक पत्र लिख रहे होते हैं मुख्यमंत्री जी को कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लगता है राजीव जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2027 में चुनाव है। सच्चाई ये यही थी जो आज इनके मंत्री महोदय सब लोग कह रहे हैं कि कई बार जो है न्यूज एंकर्स कहते हैं कि अरे अपने मंत्री अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हमने कहा जनता के बीच में जाना है उनको साल भर बाद में। अब उनको लग रहा है किस मुंह से जाएंगे हम, क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछेगी तो वो कहेंगे हम तो पूरा एफर्ट डाल रहे भाई। I need to stop you one second. Ma'am, I need to stop you for just 1 second. गणेश कानकर साहब और मुकेश गांधी साहब, सुनने वाली बात है। अब पूजा मिश्रा जी तो वहीं स्पॉट पर हैं बिकॉज शी लिव्स इन प्रयागराज। प्रयागराज में सर फ्लड वाटर्स हैव रिजन नियरली 1 मीटर अबव द डेंजर मार्क। 1 मीटर, ये 3 दिन पहले की खबर है। आज की तारीख में 1.2 मीटर्स हो गए। सबमर्जिंग 84 घाट्स, रोड्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज। और जहां तक के जो क्रेमेटोरियम है रसौलाबाद का, दैट इज ऑल्सो अंडर वाटर। गणेश खानकर साहब, मुकेश गांधी साहब, देयर इज नो वुड अवेलेबल। मैं ये प्रयागराज की बात कर रहा हूं, अभी काशी पर तो मैं पहुंचा ही नहीं, वहां तो हालत और भी खराब है। सर ऐसी हालत कभी नहीं हुई प्रयागराज की। एक बार हुई थी आई थिंक अराउंड 92-93 में ऐसी हालत हुई थी, याद है मुझको। लेकिन ऐसी हालत कैसे हो गई? आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट। क्या है, मुझको ऐसा लगता है, पूजा मिश्रा जी अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें तो प्लीज। जो हमें खबर मिल रही है वहां से कि क्योंकि महाकुंभ को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाना था, वहां पर अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब पानी कहां से आएगा सर? उनको तोड़ना पड़ेगा। तो पूजा मिश्रा जी क्या वो दीवारें तोड़नी शुरू करा है कि नहीं? वो जो प्लेटफॉर्म्स नए नए उन्होंने बनाए थे, उसके ऊपर जो रोड बनाई थी, वीआईपी रोड जो बनाई थी कि सीधा आप गंगा घाट के ऊपर चले जाएं शाही स्नान करने के लिए, क्या उसको तोड़ा जा रहा है कि नहीं? आर दे रिमूविंग इट और नॉट? पूजा मिश्रा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे जो है वो प्लेटफॉर्म दे दिया गया, वो प्लेटफॉर्म दे दिया गया, वो प्लेटफॉर्म दे दिया गया यूट्यूबर्स को और जो है चैनल्स को कि आप जाइए उस प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड करिए। आप जो है आपको अब तो नहीं जा पा रही है, अब तो वो भी जो है सबमर्ज हो गया, वो उससे पहले सबमर्ज नहीं हो रखा हुआ, तो वो प्लेटफॉर्म दे दिया गया। अगर आप बाढ़ की तैयारी की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ ग्रस्त हैं,
तो उत्तर प्रदेश की बाढ़ की तैयारी जीरो है। और हालांकि इस बाढ़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की है, ये सरकार ने इतने गलत तरीके से, अगर मैं खासकर इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद में ये आप करेंगे अनप्लान, ये तो हमने पहले ही कहा कि आप जब महाकुंभ में, और ऐसा नहीं राजीव जी, ये अनप्लान जो है कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ, मां गंगा का कोर्स भी बदला गया था लगभग 1 हफ्ते तक, क्योंकि उन्होंने घाट बना दिए। गंगा जी का क्या है कि वो बदलता रहता है, कटान होती रहती है, कभी वो इस तरफ रहेंगी, कभी वो उस तरफ रहेंगी। अब इनको लगा घाट तो हमने इधर बना दिया हुआ है, और गंगा जी चली आई है, पीछे चली गई, झूसी की तरफ मूव कर गई वो, तो इन्होंने लगा करके जो है मशीनरीज लगा करके हफ्ते दिन तक मां गंगा का कटान जो है वो घाट की तरफ किया। जब आपने जो नेचुरल चीज होती है, उस नेचुरल चीज को आपने बिल्कुल हम पर किया, नेचर के साथ में कहते हैं ना खिलवाड़ कर रहे, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। यहाँ से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के न जाने कहां जो है नेचर के साथ में छेड़खान करने का खमियाजा हम भुगत रहे हैं, और यही कार्य जो है सरकार ने किया। उस वक्त भी जो है इलाहाबाद के जो निवासी थे वो देख रहे थे कि ये गलत हो रहा है, और बार बार कह भी रहे थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पे ना जूं रहेंगी, क्योंकि उनको दिखाना था कि दिव्य भव्य, और ये दिव्य भव्य के जो है दिखाने के चक्कर में इलाहाबाद अभी भी जो है झेल रहा है। और उत्तराखंड डेवलपमेंट इतना तेज तरीके से यूपी में हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है संभल को अभी डेवलप करे टोटली। 20,000 करोड़ इलाहाबाद के लिए एलोकेट किया गया हुआ था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और वो स्मार्ट सिटी जो है पूरे डूबी हुई है, जहां पे कभी पानी नहीं पहुंचता था वहां पहुंचा हुआ है। हम लोग जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपका घर सेफ है, हम कहते हैं जब यहाँ पे आ जाएगा फिर तो इलाहाबाद ही सेफ नहीं रहेगा, मेरा घर इतनी ऊंचाई पे है, पूजा मिश्रा यहाँ पे आया तो फिर इलाहाबाद संभल डेवलपमेंट इन अ बिग वे, संभल इस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है। जो 68 श्राइन्स योगी जी ने वादा किया है, 68 श्राइन्स, और जो 19 वेल्स जो इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय किया है, वो अभी तुरंत वो पूरा रिनोवेट करके पूरे उत्तर प्रदेश को वापस वो दे देंगे। उन्होंने कहा कि संभल किलिंग्स 2 मिनट और, संभल किलिंग्स के लिए कांग्रेस जवाबदार है, जो किलिंग्स हुआ, और समाजवादी पार्टी ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, यानी चुपचाप उस चीज को होने दिया। तो किस प्रकार संभल इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, पूजा मिश्रा जी? अभी देखिए, अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी संभल दौरे पे गए हुए थे, संभल दौरे पे जाने के बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही जो है एजेंडा चल रहा है, इस वक्त एजेंडा चल रहा है कि जहां पे भी आप जाइए वहां पर जो मुद्दे हैं उन पे बात मत करिए। मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? मुद्दा है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में कि स्कूल बंद हो रहे हैं। इतने प्रोटेस्ट के बाद में आपने थोड़ा सा जो कदम पीछे लिया हुआ है स्कूल मर्जर को लेकर के। मुद्दा क्या है कि उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। मुद्दा क्या है कि उत्तर प्रदेश में किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, ब्लैक बाजारी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। वो पहुंचे संभल पहुंचने के बाद में वहां पर भी वो झूठ बोलते हैं। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि 1971 में नरेश यादव जी वहां पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें विलय हो रखा होता भाजपा, जिसमें जो 1980 में बनी, जिस पार्टी से उभर करके, और उनकी समर्थित सरकार थी, तब वहां पे नरसंहार हुआ था। उसके बावजूद भी वो प्रश्न पूछ रहे होते विपक्ष से, क्योंकि इनको छुपाना होता है कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। ये कहीं पर भी जाकर के धर्म का एंगल ढूंढ लेते हैं। अभी शायद आप लोग को जानकारी हुई कि नहीं हुई कि अभी रक्षाबंधन में भी धर्म का एंगल आ गया हुआ है कि नीले धागे, चांद, सितारे, इस पे जो है बात नहीं होना। ये यहाँ पे यही चल रहा है, रादर देन की जो रियल इश्यूज है उस पे डिस्कशन होने के बजाय। माननीय मुख्यमंत्री, आप बताइए उनको ये कहाँ होना चाहिए इस वक्त? उनको होना चाहिए था काशी, उनको होना चाहिए था प्रयागराज, उनको होना चाहिए था हर उस बाढ़ग्रस्त इलाके में जहां पे बाढ़ हो रखी है। लखनऊ में कौन सी गंगा जी है? लखनऊ में कौन सी यमुना जी है? गोमती नदी में तो इतना कभी जल रहता ही नहीं है कि वो जाकर के बाढ़ कर सके। वहां पर वाटर लॉगिंग हो रखी है, वहां पे बाढ़ आ रखी हुई है। भाई वहां पे कैसे बाढ़ आ गई? वहां पे सीवर ब्लॉकेज का पता में बरसात से बाढ़ आ गई वहां पे। नहीं, वहां पे ब्लॉकेज है सर। मैं आप ही के पास आ रहा हूं मुकेश गांधी साहब। आई एम कमिंग टू यू सर, आई एम कमिंग टू यू। जस्ट 2 स्मॉल थिंग्स मैम। पूजा मिश्रा जी, उत्तराखंड की जो आपने बात करी, यू आर बीइंग समवॉट अनफेयर। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, उत्तराखंड जब से बना है, सबसे पहला काम किया, सबसे पहले वहां के उत्तरांचल था नाम, उत्तराखंड किया गया। गणेश खानकर साहब, सुनने वाली बात है, मेरे बड़े बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे,
शायद आपके भी होंगे, मुझे मालूम नहीं है। नरेंद्र तिवारी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। सर पहला काम किया, जंगल काटो, पूरी हिल साइड डेवलप करो। ये पहले से ही चल रहा है। इनफैक्ट उसके बाद एक नई प्रथा चल गई उत्तराखंड में। पूजा मिश्रा जी, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, उत्तराखंड का हम ऊर्जा खंड बनाएंगे। 3000 किलोमीटर ऑफ टनल्स, गंगा जी को सुरंग में कैद करेंगे। अरे बाबा रे बाबा, सर उस वक्त भी हम लोगों ने वार्न किया था, like voices crying in the wilderness, both Pradeep ji and I were there, we were screaming, please don't do this, please don't do this, यहाँ पे landslides होने वाली हैं, flood आने वाला है। किसी ने नहीं सुना, आज आ रही हैं। I hate to say I told you so, but I like saying I told you so because I did say so. Number 2, जिन मुख्यमंत्री जी का आपने नाम लिया, वो शायद आपके नाम पूरा नाम नहीं ले पाए आप, वो राम नरेश यादव जी हुआ करते थे, राम नरेश यादव जी। और राम नरेश यादव जी वो क्या है कि आई डोंट वांट टू से दिस कि वो आज तक कभी शहर में उनकी वाइफ कभी रही नहीं थी, तो वो फ्लश को देख करके, एसी को देख करके वगैरह वगैरह बड़ी अचंभित हो गई थी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, विल टॉक अबाउट दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। मुकेश गांधी साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, मुकेश गांधी साहब, डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन इस विकास की होड़ में हमें हर चीज को, सृष्टि को खत्म थोड़ी करना है, प्रकृति को खत्म कर दें हम क्या? सर जैसे उत्तराखंड में ये कांग्रेस की देन है, तोड़ो काटो, जंगल काटो, सारे यहां पे रिजॉर्ट बना दो, सब कुछ बना दो, विच हैज बीन कंटिन्यूड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टिल टुडे। और उत्तर प्रदेश में भी सर डेवलपमेंट करिए, लेकिन प्लान डेवलपमेंट करिए ना। अब आप भी गए थे, यू आर प्रेजिंग द महाकुंभ सो मच, द फैसिलिटी सो मच। सर आप मेरी बात सुनिए, अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स आप ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा सर? आप मुझे बताइए, वहां कोई समंदर तो है नहीं मुंबई की तरह कि मुंबई फ्लड होती है, जैसी हाई टाइड नीचे जाती है, लो टाइड आती है, पूरा पानी निकल जाता है। नाउ व्हाट डू यू डू इन प्रयागराज, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन काशी? वहां तो गंगा जी का पानी बढ़ता ही जाएगा। और एक और बात बता दूं आपको, शायद पूजा मिश्रा जी को ये मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो प्रयागराज से हैं, शी इज नॉट फ्रॉम काशी। काशी में सर गंगा उल्टी चलती है, जब बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, तो पहले गंगा का बहाव इस तरफ होता है, फिर उल्टी चलती है। इट हैपेंस एवरी ईयर। अब आप बोले मुकेश गांधी साहब प्लीज। देखिए ऐसा है कि पूजा मिश्रा जी ने जो बातें बताई उसमें तथ्य होगा, मैं नहीं कहता हूं कि तथ्य नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम आज मैंने जो सुना है और मुझे पता है वहां तक, आज योगी जी ने ये सारे फ्लड सिचुएशन के लिए एक बड़ी वॉर रूम बनाई है और वो उनकी पर्सनल निगरानी में ये काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सर्वे हो रहा है, ये सब काम हो रहा है। अगर योगी जी सिर्फ रिलीजियस बातों करके यूपी को भड़काना नहीं चाहते हैं, आप पूजा मिश्रा जी बहुत रॉन्ग नरेशन दे रही है। उनको जितना लोगों के लिए जो फिक्र है, वो एक योगी है कि जिसको लोगों की बहुत फिक्र है। एक आदमी भी उसका हिंदू होगा या मुसलमान होगा, कोई भी धर्म का होगा, उसको कोई तकलीफ होगी तो योगी जी इज द फर्स्ट पर्सन, ही विल गो एंड हेल्प देम। आप जो नरेशन करती हैं, आपके सामने हमारे पास यूपी के कोई एमएलए या कोई प्रवक्ता होने चाहिए कि जो ये सच्ची बात बताएं। आप करेक्ट करके कहेंगे तो हम मानेंगे नहीं, पर योगी जी के जो कैरेक्टर है उसका, नहीं, आप एक्सेप्ट गलत कर रही हो बहन जी। लेकिन सर एक बात तो है, अगर काशी की रिपोर्ट पढ़े, मुकेश गांधी साहब, जस्ट वन स्मॉल इंटरवेंशन, कर रही हो मुकेश गांधी साहब एक स्मॉल इंटरवेंशन, उनके पास वाटर मैनेजमेंट, अरे मुकेश गांधी साहब एक सेकंड करके सर, 1 सेकंड सर 1 सेकंड। हाँ जी सर, जो ब्रह्म घाट जो है काशी का, और जहां पर सबसे ज्यादा अंत्येष्टि होती है लोगों की, काशी में लोग इसलिए जाते हैं ना, क्योंकि वहां के क्षेत्रपाल जो हैं वो भैरव बाबा हैं। कहा जाता कि यमराज भी आपको टच नहीं कर सकते भैरव बाबा की परमिशन के बगैर, वो तो कोतवाल है ना, इसलिए जाते हैं। अरे उनके घाट पे भी पानी भर गया सर अभी। हाँ, तो ये हालत हो गई है। देखो क्या है, अभी आज एनवायरमेंट का तो आज डिजास्टर इतना जबरदस्त है। करेक्ट है सर, तो और क्या बोल रहे हैं? तो पूजा मिश्रा जी ने वही बात तो कही है। आज आप अमेरिका में देखिए, कल कैलिफोर्निया में कितना बड़ा
जंगल में बहुत बड़ी सर लेट्स फॉरगेट अबाउट अमेरिका, लेट्स टॉक अबाउट जापान में आवरसेल्व्स। कितनी तकलीफ सर आ अपनी गई, बात करें ना, पानी का ये हो गया। सर अपनी बात करें, अपनी बात करें। यहाँ हो गया तो ये यूपी में योगी जी की मिस्टेक है। ये जो पूजा जी जो बता रही है वो गलत बता रही है बहन, ये ऐसा नहीं है। योगी जी ऑलवेज कैरिंग। However, Mukesh Gandhi साहब, I must congratulate everybody. Let me allow me to give some good news. Sir, allow me to give some good news. It is not all doom and gloom. मुंबई में इस बार फ्लड मैनेजमेंट, मॉनसून मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही है सर इस बार, मानना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। एक या दो जगह छोड़ करके को अगर तकलीफ होगी तो उनको महाराष्ट्र की गाइडेंस लेनी चाहिए। करेक्ट है सर, that's what I said, that's what I began with. महाराष्ट्र से आपको योगी जी को आकर के देखना चाहिए, भाई यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पका लो, कोई हमारे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी को बना दो ना, वहां पे आपके वॉर रूम का हेड बना दो, दो मिनट में हो जाएगा। लेकिन सर आई मस्ट अप्रिशिएट मिस्टर भूषण गंगरानी एंड हिज टीम एंड द चीफ मिनिस्टर एंड हिज टीम, जो अपने देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने जो जिस तरीके से एक एक चीज को मॉनिटर किया है मुंबई में एज यूजुअल देयर वाज ओनली फ्लडिंग एट दी क्या है वो अंधेरी सबवे, और सर अंधेरी सबवे में तो हर बार थोड़ी सी बारिश आती है, वो तो भर जाती है। बाकी मुंबई शहर में देयर वाज नो मेजर जैम, नो मेजर प्रॉब्लम, नॉट इवन विद ट्रेन। सर इस बार ट्रेन बंद नहीं हुई फ्लडिंग की वजह से, और तो और छोड़िए, इट हैज बीन सो गुड, आई मस्ट कांग्रेचुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। I want to ask आपकी मीठी नदी भी ये टाइम में मीठी रही है, कोई तकलीफ नहीं हुई लोगों को। हाँ सर, बहुत अच्छा बोला सर, बहुत अच्छे आपकी मिठी नदी वो, और बड़ी मीठी खुशबू आती है सर वहां से, कभी आइए, बहुत बढ़िया सब, यू कैन स्मेल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्रोमियम ऑक्साइड, बहुत जबरदस्त आती है सर वहां से, जो इंडस्ट्रियल एफल्यूएंट जो है सर। गणेश खंकर जी, Khankar साहब, I want to ask you, Rahul Gandhi ji will come back to easy because he accused Maharashtra also. महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटों का चोरी करके देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार, महायुति is come back to power. That is राहुल गांधी जी अगर कुछ कहता है कि वोटों का चोरी हो रहा है, he is the leader of the opposition. Why is election commission asking affidavit? ये एफिडेविट किस लिए? ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पूरे देश का, अगर वो कुछ कहता है, ही इज जस्टिफाइंग इट, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं कुछ बोलता हूं तो ऑन स्यूमोटो आपको कॉग्निजेंस लेके उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप वीडियोग्राफी नहीं देते, आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं देते, आप अलग अलग बहाने करके वोटर लिस्ट नहीं देते राहुल गांधी, तो व्हाई डोंट यू टेक हिज वर्ड एज एन ओथ एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन? कानकर साहब, कानकर साहब, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। कानकर साहब, आवाज नहीं आ रहा। बिल्कुल आएगी, तो है ना, बोलिए सर, बोलिए। कि नबियार जी, हाँ बोलिए। कल मैं आपकी प्रेस रखता हूं और उस प्रेस में आई विल रिक्वेस्ट यू टू चैलेंज सारी व्यवस्थाएं अपने देश में जो है, आपकी जुडिशियरी, आपकी न्यायपालिका, आपके इलेक्शन कमीशन, देन ये सारी, मैं 2-3 चीजें आपके लिए ऑर्गेनाइज करता हूं, सारे रिपोर्टर्स को बुलाऊंगा। सर आप जैसे ही कुछ बात कहेंगे ना साहब, तो शाम को सारी मीडिया में आप हीरो बन जाएंगे। परसों जब सवेरे लोग आपसे पूछेंगे कि कल आपने बात कही थी, भाई ये किस आधार पे आपने कही थी, तो नम्बियार जी आपको उनको बताना पड़ेगा। देखो, एक जनतंत्र में एक मजाक बना दिया है साहब। क्या राहुल गांधी जी देश के पहले विरोधी पार्टी के नेता है क्या? इसके पहले भी पूरे देश में कितने विरोधी पार्टी के नेता हो गए जिनकी बात को गंभीरता से लिया जाता था साहब। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, नीचे की अदालत में जाकर आपको सॉरी कहना पड़ता है, आपको माफी मांगनी पड़ती है। आपने राफेल के बारे में कहा, क्या हुआ सर? यानी अब आपको कोर्ट पूछती है चाइना के विषय में, आपको कोर्ट ने पूछा, भाई आप सच्चे देशभक्त होते तो इस तरह की बात आप न करते। क्या ये पहली बार हो चुका है? देखिए ऐसा है नम्बियार जी, यदि हम इस घटनात्मक व्यवस्थाओं पर यदि हम आरोप करते हैं, यू आर अलाउड। मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगा। जिस वक्फ बोर्ड को लेकर ये सारी बातें हुई, क्या राहुल गांधी जी उस दिन संसद में बैठे थे? तो नहीं बैठे थे, और रात को 12 बजे वोटिंग करने के लिए गए। अब वो बाकी पूरे देश में चिल्लाते रहेंगे लेकिन संसद में बात नहीं करेंगे। देखो ऐसा है,
हर पद की एक गरिमा होती है। और इसलिए मैंने कहा कि असेंबली में भाषण करना अलग होता है, पार्लियामेंट में भाषण करना अलग होता है, आपकी पब्लिक मीटिंग में आपके कार्यकर्ताओं के सामने भाषण करना अलग होता है। हर जगह की एक इंपॉर्टेंस होती है। इफ यू आर टॉकिंग इन पार्लियामेंट, आपको तथ्यों के आधार पर, क्योंकि वहां आपकी बात रिकॉर्ड होती है, आज के 50 साल के बाद में भी वहां पे जो कोई चुनकर जाएगा वो आपके भाषण के रेफरेंस देखकर वहां पे बैठे हुए स्पीकर सर को बात करेगा। ठीक है, ऐसा है। आप अपनी व्यवस्थाओं पे आरोप लगाते हैं और आप प्रूफ भी नहीं देंगे। आप किस हैसियत से बोलते हैं कि आप राजीव गांधी जी के बेटे हैं, आप इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, नेहरू जी के पर पोते हैं, इसीलिए आपने जो बात कही वो न्यायपालिका ने माननी चाहिए, वो चुनाव आयोग ने माननी चाहिए। और ऐसी बात है, मैं एक लाइन में कह दूं तो राहुल गांधी जी अब अपना आपा खोते जा रहे हैं। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूं। वे धीरे धीरे पार्टी का कंट्रोल खोते जा रहे हैं। देखिए ना, नैरेटिव क्या सेट हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था गलत है, देश का चुनाव आयोग गलत है, सर गलत नहीं देश है, की न्यायपालिका नहीं बोला गलत है, नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री को लोग डंडा मारेंगे, नो सर, राफेल चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री चोर है। ये क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं साहब? सर ये क्या, ये सही है? गणेश खानकर साहब, आप एक प्रमाण चीज, एक कीजिए जगह पे ना, आप गलती प्रमाण कर देखिए, गए। बात कीजिए। देश की जनता आपको सुन रही है साहब, किसने रोका है आपको? सर, लेकिन आप बात वहां नहीं करेंगे, आप प्रेस मीडिया के सामने कहेंगे और ये कहेंगे बोलते हैं, उनको बोलने मैं नहीं जो दिया कहता जाता। हूं उसको मान लो। नो खाता नो बही जो कहेंगे राहुल गांधी जी वो सब सही। गणेश खानकर नंबियार जी, जी, I am sorry, ये आपको भी sorry लागू to होता correct है। नो खाता नो बही प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो नंबियार जी कहेंगे वो सब सही। क्या ये आपको चलने वाला है? प्रदीप नंबियार जी, आपके लिए नया करियर चालू, वंडरफुल, फैंटास्टिक। But गणेश खानकर जी, I have to correct you on one thing, one second. I am coming to you, Pooja Mishra जी. You wanted to say something, sir? एक मिनट। सर, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने ट्रंप साहब से एग्री किया। ट्रंप ने कहा इट्स अ डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी साहब ने आके कहा इट इज अ डेड इकोनॉमी। He didn't say the economy is not doing well. He said it's a dead economy. That's what he said. Right. He is a frustrated person, sir. Sir, he is wrongly. हो चुका है। वो अपनी पार्टी को न संभाल पा रहा है, न पार्टी को जिता पा रहा है। Sir, ये perhaps he राजनीति is में not होता been है briefed. साहब, ये होता है। Sir, ये हमारे we- साथ भी हो चुका है। Sir, we are under लेकिन the. हमने कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया साहब। Sir, we are under the impression. I am under the impression, and I have always suggested this to people close to Rahul Gandhi ji. कुछ बोलने के पहले एक बार अखिलेश जी से बात कर लिया करें। कुछ बोलने के पहले, very frankly speaking, it will be much better. और नहीं राजीव जी, एक बात मैं भूल गया। बोलिए If you sir. allow me, Please. if you allow me, Of course, sir. just Please. 1 minute. Yes, sir. ऐसा है कि ये आप गए 10 साल से देखेंगे तो राहुल गांधी जी के एक नई स्टाइल का आपको परिचय हुआ होगा साहब। अब ये सेशन खत्म होने के बाद, ये मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन आने के लिए अभी 3 महीने का पीरियड बीच में बचा होगा। जी। इस बीच में राहुल गांधी जी 15, 20, 25 दिन देश से गायब हो जाएंगे। वो कहाँ गए किसी को पता नहीं होगा। जैसे ही आपका कोई सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, उसके 1 हफ्ते पहले कोई ना कोई नई बात वो लाते हैं। और वो नई बात ये लाते हैं कि आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था गलत चल रही है, इस पे वो टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। आप एक बार जांच लीजिए साहब, ये अगले विंटर सेशन से पहले भी 1-2 दिन पहले ये चालू कर देंगे। Pooja Mishra ji, you wanted to say something? Please go ahead. मैं एक बात कहना चाहता हूँ। Sir, 1 second. Let Pooja Mishra ji say, then I'll come to you. Sir, 1 second. बार-बार जो है भाजपा के प्रवक्ता महोदय सर, कहते हैं कि वो will you allow me, sir? LOP जो है, जी, गणेश खानकर साहब, थैंक यू, नमस्कार। मैं पूजा जी और गांधी जी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं किसी और चैनल पर मुझे 8:30 बजे बैठना है, तो मैं आपको अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ, बुरा मत मानिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर वंदे महादेव, मातरम, थैंक यू, वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी, पूजा मिश्रा जी, प्लीज गो अहेड। राजीव जी बिल्कुल बार-बार हो रहा है कि जो है एलओपी महोदय जो है एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एफिडेविट मांगा है। अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप चले जाते, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप उनके अगेंस्ट में जो कार्रवाई कर सकते हैं, विधिक कार्रवाई करने के लिए चले जाते। मैं इस पे नहीं आना चाह रही थी, मैं इस पे आना चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एफिडेविट दिया हुआ है।
हमने 18,000 वोटर्स का 2024 के इलेक्शन के बाद में उनको मृत दिखाया गया हुआ था, उनके जीवित, उनके हलफनामे के साथ में हमने इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक एक्शन नहीं लिया। वोटिंग वाले दिन जो है, जब जिस दिन वोटिंग होती रही, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को विद रिटन और सोशल मीडिया, मेल्स, हर चीज के द्वारा लगातार उनको अवगत कराया और उनके पास में कंप्लेंट किया। हमने यूं ही नहीं कहा था कि कफन लेकर के चढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के पास में, क्योंकि हमारा अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं विद प्रूफ, विद नेम, तो आप या तो उस पे जांच करके हमें गलत बोले कि आपने गलत किया हुआ है, आप गलत तथ्य दे रहे हैं, या फिर ये कहिए कि तथ्य सही है, उसके अगेंस्ट में एक्शन हो जाए। ऐसे ही 2020 में हमारे जो है शिक्षक प्रत्याशी रहे, हमारे साथी प्रवक्ता भी हैं, वो उस वक्त शिक्षक एमएलसी का जो है चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी पूरे बिल्कुल प्रूफ के साथ में इलेक्शन कमीशन को दिया था जो बातें राहुल गांधी जी कह रहे हैं उस तथ्यों के साथ में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आप जहां पे आपको एफिडेविट मिल रहा है वहां पे आपको संज्ञान नहीं लेना है। अगर एलओपी कुछ कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप मुझे बकायदा एफिडेविट लिख करके दीजिए, तब हम जाकर के इसको क्रॉस चेक करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है तो मुझे लगता है इसी में प्रश्न हो जाता है। That's right. और राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता हमने देखी हुई है, उन्होंने जो तथ्य पेश किए, अगर ये तथ्य गलत होते तो आपको लगता है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आता नहीं डंके के जोर के साथ में कि आपने जो जो तथ्य पेश किए हैं इसके काउंटर ये है। ये इलेक्शन कमीशन का उनसे बोलना कि आप लिखित लेकर के आइए, यही बताता है कि गड़बड़ तो है। But 80 people at one address. मुकेश गांधी साहब जो अभी पूजा मिश्रा जी ने कहा, फैक्ट इज 80 people, 80 वोटर्स रजिस्टर्ड एट वन एड्रेस, एक एड्रेस में 80 वोटर। सर ये क्या है? अब आप बोले मुकेश गांधी साहब प्लीज। ये ऐसा है, राहुल गांधी नरेशन बनाने में एक्सपर्ट है, पर आज एक बात भी आप देख लेना कि आज राहुल गांधी के जो मिसलीडिंग अप्रोच के कारण और उसके नेतृत्व के अंदर जो गड़बड़ी चल रही है, आज धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर जैसे पहले 26 सीनियर लोग कांग्रेस से निकल गए हैं, वन सॉर्ट ऑफ डाइवर्ट हो गए हैं, वैसे ही आज आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले देखिए, तो ही ऑल्सो डिनाइज द पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ राहुल गांधी। He doesn't deny. सर अगेन दैट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ द कांग्रेस। सर जो उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो उन्होंने तथ्य सामने रखे हैं कि 80 वोटर एक एड्रेस पे, और उस एड्रेस पे इंडिया टुडे की टीम गई, इंडिया टुडे की टीम ने यह पाया कि वो एक छोटी सी खोली है 5 बाई 10 की, जहां पर एक आदमी रहता है, वो कहता है कि यार मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या है, 80 लोग उस पर रजिस्टर्ड है। तो सर उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, उसमें गलत क्या है? इन्वेस्टिगेशन तो देखिए ऐसा है, डेमोक्रेसी में राहुल गांधी अगर बोलते हैं तो उनका हर प्रश्न का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। राहुल गांधी का तरीका गलत है, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते और बाहर पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते सर, प्रचार करते हैं। ये पार्लियामेंट में बोलने का देते हैं उनको। देखिए ऐसा है कि अभी भाजपा वालों के पास भी मीडिया बहुत अच्छा है, तो वो भी अभी इस तरह से प्रचार करेंगे। तो आज गलियों के अंदर ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट, दिस डिबेट इज फॉर पार्लियामेंट। बट इन पार्लियामेंट सर, प्लीज अंडरस्टैंड मुकेश गांधी साहब, द बीजेपी's or the ruling party, not the BJP, the ruling party, because there are about 3, 4, 5, got 21 parties now in the NDA. They have said very clearly the election commission is an independent body. It's a constitutional body. It cannot be debated in parliament because nobody from the election commission will be there to answer questions. That's what they said. So parliament के अंदर बोल के वो बीजेपी, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो खुद कह रही है कि इसका फायदा नहीं है, तो आदमी भारी बोलेगा ना सर, और क्या बोलेगा? I want to know, when अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि SIR का डिस्कशन has to be in the parliament and the entire opposition is together. Yes, on this. अखिलेश यादव जी कह रहे हैं when the opposition is asking for a debate, why don't you have a debate? तो अखिलेश यादव जी is not wrong when he says लोकतंत्र खतरे में। You are not conscious. बोलिए। तो लगता है कि राहुल गांधी को भी अखिलेश क्वेश्चन और चल रहा था जिस दिन जो है ऑपरेशन सिंदूर में डिस्कशन हुआ था, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जी बोलिए मैम। कि आपको ध्यान होगा कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा था और जिस दिन जो है ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन हो रहा था, इट वाज अ क्वेश्चन आवर, और उसमें जो है विपक्ष डिमांड कर रहा था कि एक क्वेश्चन SIR पे लिया जाए।
आपको पता हो कि जितनी बार भी चला सदन उतनी बार हुआ कि विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव में से एक भी प्रस्ताव नहीं माना जाता था। उसके बाद में जब हम प्रश्नकाल में कह रहे थे कि एसआईआर पे एक डिस्कशन हो जाए, तो आपको ध्यान होगा कि स्पीकर महोदय कहते हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन जब पहले से प्रस्तावित है, वो प्रश्न काल है, और प्रश्न काल पे जो है आपसे एसआईआर पे प्रश्न हम चाह रहे हैं, और वहां पे स्पीकर जब कह रहे नैरेटिव बार बार, वहां से स्पीकर ही नैरेटिव सेट क्या बना सकते हैं मैडम? जो एजेंडा में नहीं होता है वो आप कैसा पुटअप कर सकते हैं? पूरी देश की जनता देख रही होती कि सदन में नहीं, क्या नहीं, चल नहीं, रहा पूजा है, जी, ऐसा आप और wrong सोशल narration पावर को मत mislead कीजिए। करने के लिए कि आप आप जो है ऑपरेशन सिंदूर पर हमें डिस्कशन पहले नहीं करना एडवांस में चाहते, कहना आप पड़ता किसी है पर कि discussion कौन नहीं से करना टॉपिक के चाहते। ऊपर और चर्चा उस वक्त होगी, उसकी डिस्कशन क्या परमिशन कर रहा होता होती है है, सरकार की तरफ फिर से? चर्चा सरकार की होती तरफ है। से कहा जा रहा होता है कोई कि भी हम narration जो डाल है देंगे तो होटल्स थोड़ी चर्चा में होती जिस है। तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है होटल्स बना रहे, इस तरीके की बातें चल रही थी, जबकि प्रश्न कहा जा रहा था हमारी तरफ से कि एक एसआईआर पे प्रश्न होना चाहिए, बहुत जरूरी है, जो आप 40 दिन में करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने प्रश्न नहीं लिया, वहां से जो है स्पीकर महोदय ऑपोजिशन वाले नैरेटिव सेल सेट सब करते हैं वेले कि में आ जाते हैं और हम हंगामा करते हैं। लेकिन सर 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 में आपने माइक तोड़ा था, 2006 में आपने माइक तोड़ा था, 2012 2013 आपने पर्चियां लेकर के पहुंच गए थे, आप प्ले कार्ड लेकर के आए, आप माइक तोड़ दे। जी, और तो और छोड़िए, अरुण जेटली साहब ने यह भी कहा था, टू डिसरप्ट पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक टैक्टिक। दैट्स व्हाट अरुण जेटली साहब हैड सेड। सर माय प्रॉब्लम इज आई रिमेंबर एवरीथिंग। अरुण जेटली साहब की ये स्टेटमेंट है, इफ यू वांट आई कैन सेंड इट टू यू, आई हैव नो प्रॉब्लम। ही सेड इट्स अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक टैक्टिक टू डिसरप्ट पार्लियामेंट, ऐसा कहा था सर उन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस का ये भी कहना है कि जब हम नोटिस भी देते हैं तब भी अलाउ नहीं करते डिस्कशन आप। सर ये तो गलत है ना, आपको क्या लगता है? जब नोटिस भी दिया जाता है कि यार इस पर डिस्कशन करो, स्पीकर साहब मना कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, तो आदमी करे तो क्या करे? भारी जाएगा ना। जो गांधी जी का पुतला है उसके सामने खड़े होकर लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, और क्या करेंगे? तो क्या है सर? और गांधी साहब बात यह है कि ठीक है, ऑपोजिशन, एंटायर ऑपोजिशन इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। एंटायर ऑपोजिशन जब कह रहा है कि आई वांट डिस्कशन ऑन द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट, व्हाट इज द हार्म? और दूसरा, अब लोकल बॉडीज में महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र कहता है कि नो वीवीपैट्स, नो वीवीपैट। एक तो शंका है कि इलेक्शन रिग हो रहा है, उसके बाद आप वीवीपैट निकाल के ये कहोगे कि लोकल बॉडीज में वीवीपैट का इस्तेमाल कभी नहीं किया, तो यू शुड गो वन स्टेप अहेड। अभी स्टार्ट कीजिए। यू शुड गो वन स्टेप अहेड एंड से ठीक है, लोगों को डाउट है कि इलेक्शन इज बीइंग रिग्ड, हम वीवीपैट लगा देते हैं। कौन सा बड़ा खर्चा है? सरकार का खर्चा हो रहा है ना, इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों बोल रहा है बहुत महंगा खर्चा हो जाएगा? हाउ डज इट मैटर? डू हैव द वीवीपैट, इट विल बी अ फेयर इलेक्शंस। देंगे, आप पहुंचा दीजिए आपके माध्यम से, और जो आप सर हम बोल रहे हैं पिछले 10 दिन से, के अंदर हम आपका सपोर्ट करते हैं। सर 10 दिन से बोल रहे हैं हम लोग, अभी तक तो, और सामने से ये खबर आई है कि अभी तो डेट भी फाइनलाइज नहीं हुई है, और उसके पहले काय को चिल्ला रहे हो? अभी तो मालूम नहीं कि बीएमसी के इलेक्शन इस साल होंगे कि अगले साल होंगे, और अगले साल में पता नहीं फरवरी में होंगे कि अगले साल सितंबर में होंगे, ये भी मालूम नहीं है। ये तो बहुत पोस्टपोनमेंट इज अ वेरी डेंजरस फॉर द रूलिंग पार्टी। यू हैव बीन पोस्टपोनिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लोकल बॉडीज इन महाराष्ट्र 3 साल हो गए। गांधी साहब, अच्छा गांधी साहब, चलते चलते एक सवाल का जवाब जरा दे दें आप। पूजा मिश्रा जी, सुनने वाली बात है ये, जरा ध्यान से सुनिए। अजीत दादा पवार कहते हैं कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा हैं उसको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देना चाहिए। सर ये क्या है मतलब? सर मैंने तो ऐसा सुना नहीं है। आज आया सर, स्टेटमेंट आई है अजीत दादा पवार की आज। सर ये क्या है? तो नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग सर? पर मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चे तो भगवान की देन होती है, जितने ज्यादा होते हैं उतना अच्छा है। सर ऊपर से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले सब बोलते हैं जितने हिंदू परिवार हैं 12 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, आप बोलते हैं सिर्फ 2 बच्चे। सर आर यू श्योर अजीत दादा पवार इज रियली विद द बीजेपी? मतलब मैं पूछ रहा हूं सर। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। बट वन थिंग वी आर वेरी वेरी क्लियर, द गुड न्यूज इज देयर इज गोइंग टू बी अ रशिया इंडिया चाइना मार्केट वेरी वेरी सून अलोंग विद ब्राजील। ब्रिक्स की एक नई मार्केट बनने वाली है, और डॉलर की जो डोमिनेंस थी अभी तक वर्ल्ड में, all thanks to Mr. Trump, it is going to go because people are going to use either gold. ब्रिक्स की करेंसी भी बना दो, फिर डॉलर की हवा। सर वो होने वाली है, it is going to happen. Sir, it is going to happen. SWIFT, the International Exchange App,
आप किस तरीके से आप पैसे आप बाहर भेजते हैं? You send it via SWIFT, which is an American app. Now the BRICS is coming out with its own app based on our own UPI. हिंदुस्तान का जो UPI है उसके बेसिस पे एक नया BRICS का ऐप बनने वाला है, which will be functional by next month. Yes, yes. You won't need SWIFT उसके बाद. तो the man who will be credited with having destroyed America is Mr. Trump. Let's be very clear. That's going to happen. यूटीआई के कारण तो वीजा और मास्टर कार्ड का पंक्चर हो गया ना सर. Yes, yes. Arey, why do you think Trump is so angry with us? All thanks to UPI. I didn't want to say it. UPI, Visa, MasterCard, and all these other credit cards. They are going mad. कि यार हिंदुस्तानियों ने कर क्या लिया ये बात हो गई है. In any event, thank you very much. हाँ, just one small aberration. इस तरफ ये इतनी मतलब जो 250%, 50% और दूसरी तरफ नासा और इसरो की कोलैबोरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से जारी है. जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है उनके लिए इंजन सप्लाई कर रहा है. नए रेलवे इंजन भी आ रहे हैं यूएसए से. उसके अलावा यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज हैं, बाय द वे देयर आर 6 मेजर यूएस यूनिवर्सिटीज, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज, who have applied for licenses to start campuses here in India. And mostly in Navi Mumbai. What's going on? What is going on here? I don't understand what's going on here. और ट्रम्प साहब से जब पूछा गया कि भैया आप हमें ऑयल की बात कर रहे हैं, आप तो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं. The president of the United States says, I don't know. I'll have to find out and let you know. I need to know it. I need to ask my people and come back. राजीव जी, अंत में ऐसा है कि राज कपूर के गाने जैसा होगा, अराउंड द वर्ल्ड इन $6. Around the world in $8, sir, $6. $8. Thank you very much. Thank you. Okay. Pooja ji, thank you very much. Even though you have left us, I'm sure you can hear us still. Thank you very much, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुकेश गांधी साहब. हर हर महादेव. नमस्कार. Namaskar, namaskar, namaskar. Well, I hope I hope we will not succumb to American pressure. That's all that I can say. At the moment, it doesn't look like it, but I hope to The Prime God. Minister has given a statement that Yes. we are not going to succumb. Yes. We are not going to surrender our sovereignty. And we will find new markets, which he's already started doing. In any event, as far as the bulk of Indian foreign exchange terms are concerned, by the way, I don't know whether our viewers are aware of this. In terms of our IT services, they have been exempt. IT services have not been taxed under that 25-50% tariff regime. So it will not affect Wipro, it will not affect TCS, it will not affect Infosys, it will not affect our main foreign exchange earners. So, well, maybe Mr. Trump hasn't paid attention to that as yet. Maybe he'll pay attention. If he to that. touches that, I mean, there's going to be a volcanic effect where US is concerned. Because In the US, Yes, yes. because we are managing the back office Oh, yes, of all their major financial institutions, Bilkul. by the way, including the Nifty. Yes. So, that is the New York Stock Exchange. All the back office is being managed here in Mumbai, not far from where we sit. Well, that's just about it from both Pradeep ji and me. आप जरा comments अपने जरूर भेजें and do subscribe to the channel, please. The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now, fastest growing channel of the nation. Well, one small thing before we go. Since Mr. Trump has been taking credit for stopping so many wars, I'm very surprised he's not taken credit for stopping the First World War and the Second World War. वो भी ले लीजिए, क्या है उसमें? I did मतलब it. उसमें और वियतनाम वॉर से जो यूएस ट्रुप्स वापस आए वो भी उसका भी क्रेडिट ले लीजिए. I did it, करिए, क्या है उसमें? I mean, who's stopping you? Yes. I mean, as far as Mr. Trump is concerned, he's capable of anything. I mean, he's capable of time travel. He's capable of going to different galaxies and stopping the war over there. What is it? Long time ago in a galaxy far away, something like Yes, that. yes. Where Right. no man has gone before. That's Star Trek. Yes. I'm talking about Star Wars. Okay. And in Star Wars, we can always talk about the Rebel Alliance and the Evil Empire. Now Trump has to decide whether he's going to be Darth Vader or he's going to be Han Solo. Or is he going to be both? In his mind, I think he's both. Well, that's just about it. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow.
You keep watching Nation Now, and thank you very much for your support. And as we said yesterday, day before yesterday, with regard to that Adani project and other things, we have got nothing against Mr. Adani. But you can't hand over everything to just one person or just one conglomerate and then expect no protest, number one. Number two, and if that conglomerate along with you is not even talking to the people who are affected, now that raises questions. So as far as the Motilal Nagar, I was told Motilal Nagar, Motilal Nehru नहीं है, Motilal Nagar है. But और कौन सा मोतीलाल है सर? I don't think it could be the actor Motilal, could it? जो गोरेगांव में जो Everything was Nehru Gandhi. तो वो मोतीलाल नेहरू नगर जो है, अब मोतीलाल नगर है उसका नाम है, मुझे वहां से आया कि भाई वो नेहरू काय को लगा दिया आपने. चलिए साहब, मोतीलाल नगर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स एवर इन बॉलीवुड. मोतीलाल जी हो गए, बलराज साहनी साहब हो गए, ओमपुरी साहब हो गए, नसीरुद्दीन शाह साहब हो गए. मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक उनका सवाल है, वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट, विल बी बैक. याद रख लीजिएगा. ये जानने के लिए कि क्या मुख्यमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं म्हाडा को कि इनसे बात की जाए और एक फाइनलाइज किया जाए कि कितना स्क्वायर फुट उनको मिलने वाला है, किस जगह पर उनको अकोमोडेट किया जाएगा जब ये प्रोजेक्ट का काम हो रहा होगा, अपना घर ये छोड़ करके कहां पर जाएंगे और कब तक वापस आएंगे. नाउ दैट इज समथिंग पीपल नीड टू बी टोल्ड. दैट्स माय ओपिनियन. एनीवे, दैट्स इट. दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू. विल सी यू अगेन. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद.